میں خبر یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا چڑیا گھر کا تفصیلی دورہ، چڑیا گھر کی اپ گریڈیشن کے کام کا جائزہ لیا، جاری تعمیراتی سرگرمیوں کا بھی معائنہ کیا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا چڑیا گھر میں پرانی تعمیرات نہ گرانے پر ناراضگی کا اظہار، بچوں کی تفریح کے لیے نئے جانور لانے کے عمل کو تیز کرنے کی ہدایت کی۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں لیاقت علی سے۔ جی لیاقت، بتائیے گا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے لاہور چڑیا گھر کا تفصیلی دورہ کیا اور لاہور چڑیا گھر کی اپ گریڈیشن کے کام کا جائزہ لیا، جاری ترقیاتی سرگرمیوں کا معائنہ کیا اور چڑیا گھر میں پرانی تعمیرات نہ گرانے پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پرانی تعمیرات کو جلد مسمار کیا جائے اور کام کو مزید تیز کیا جائے، اتنا انتظار کس بات کا ہے، پرانی تعمیرات کو بر وقت مسمار کیوں نہیں کیا گیا۔ نگران وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ اب انتظار کیے بغیر پرانے اسٹرکچر کو گرایا جائے اور مزید تاخیر نہ کی جائے۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اتھارٹی پنجاب کی ٹیم کو بھی چڑیا گھر میں طلب کر لیا اور لاہور چڑیا گھر مکمل طور پر نیا اور منفرد بنانے کی ہدایت کی۔ شہریوں کو خصوصاً بچوں کو تفریح کے لیے نئے جانور لانے کے عمل کو بھی تیز کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے چڑیا گھر میں زیر تعمیر جو پل ہے اس کا بھی معائنہ کیا اور وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے سانپ گھر، زرافہ ہاؤس، شیر گھر، ہاتھی گھر، مچھلی گھر کا جائزہ لیا اور آپ کے پروگرام کے تحت جانوروں کے پنجروں کو کشادہ رکھنے کی ہدایت کی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ تو خبر یہ ہے ہوائی فائرنگ اور ہلڑ بازی پر زیرو ٹالرنس، آئی جی پنجاب کا نیو ایئر نائٹ پر صوبے بھر کی سیکیورٹی بڑھانے کا حکم، سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے تمام سرگرمیوں کی مسلسل مانیٹرنگ کی ہدایت کی ہے۔ ڈولفن پولیس رسپانس یونٹ ایلیٹ فورس کو گشت بڑھانے کا حکم دے دیا ہے۔ اسی پر بات کریں گے مجاہد لطیف سے۔ بتائیے مجاہد، کیا منصوبہ بندی ہے اس متعلق؟ سیکورٹی بڑھانے کا حکم ملا ہے اور سال نو کی آمد پر لاہور سمیت صوبہ بھر میں 21,000 سے زائد پولیس افسران اور اہلکار سیکورٹی پر تعینات ہوں گے۔ پنجاب پولیس کی جانب سے کہا گیا ہے پولیس ہائی الرٹ رہے، ملک امن و امان دشمن ناصر پر کڑی نظر رکھے، سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے تمام سرگرمیوں کی مسلسل مانیٹرنگ کی جائے گی۔ پنجاب پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کسی بھی شخص کو گل گپاڑا شہریوں سے بدتمیزی، اخلاقی حدود سے تجاوز کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی۔ ہوائی فائرنگ، ون ویلنگ، ہلڑ بازی، خواتین اور شہریوں کو تنگ کرنے پر زیرو ٹالرنس ہوگی۔ پولیس کی جانب سے کہا گیا ہے ڈولفن اسکواڈ، پولیس رسپانس یونٹ، ایلیٹ فورس، ہائی وے پٹرول ٹیمیں سڑکوں اور شاہراہوں پر پٹرولنگ بڑھا دی گئی ہے۔ تمام شاہراہوں پر سرچ اینڈ سویپنگ آپریشن باقاعدگی سے جاری رہے گا۔ گزشتہ سال کے ریکارڈ یافتہ ون ویلر ہوائی فائرنگ کے ملزمان پر کڑی نظر رکھی جائے گی، ضمانتی مچل کے لیے جائے۔ نیو ایئر نائٹ پر ون ویلنگ، ہوائی فائرنگ، ہلڑ بازی، جرائم کی روک تھام کے لیے خصوصی ناکے لگائے گئے۔ سی سی پی لاہور، آر پی اوز اور دیگر افسران کو جو ہے یہ تمام احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ جی ٹھیک ہے مجاہد لطیف، بہت شکریہ آپ کا۔ نیو ایئر نائٹ پر ڈولفن اسکواڈ کی ڈیوٹی کے لحاظ سے 3 مختلف درجہ بندیاں ہوں گی۔ اسپیشل اسکواڈ 220 سے زائد ٹیموں پر تشکیل دیا جائے گا۔ 70 اہلکاروں کا اسپیشل دستہ لاہور کی اہم ترین بلند عمارتوں پر تعینات کیا جائے گا۔ ڈولفن ٹیمیں ہوائی فائرنگ، ون ویلنگ اور ہلڑ بازی کی روک تھام کے لیے کام کرے گی۔ بات کریں گے مجاہد لطیف سے۔ بتائیے مجاہد۔ ہاں جی، ڈولفن پی آر یو کی سیکنڈ تھرڈ شفٹ کی مشترکہ ٹیمیں شام 7 بجے آؤٹ ہوں گی۔ ون ویلنگ ہلڑ بازی کی روک تھام کے لیے 256 جوانوں پر مشتمل اسکواڈ تشکیل دیا گیا ہے۔ اہم شاہراہوں پر مقامی پولیس کے ساتھ ناکہ بندیاں کی جائیں گی۔ ویلنگ اسپاٹس پہ والٹن ڈیفینس، جے روڈ، مال روڈ، چوبی، امرسد، کریم بلاک، کھوکر، شور شوکت خانم روڈ پر یہ تمام ناکے لگائے جائیں گے۔ جو جہاں بھی قانون شکنی ہوگی پورے عزم کے ساتھ ایسے افراد کے ساتھ آنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ ایس پی ڈولفن فورس کے جو ہے ان کا کہنا تھا یہ 70 اہلکاروں کا اسپیشل دستہ لاہور کی اہم ترین بلند عمارتوں پر تعینات کیا جائے گا۔ ڈولفن کا خصوصی دستہ آزادی فلائی اوور، شاہراہ قائد اعظم، مالور برج، فیصل چوک، کلب چوک، مون مارکیٹ اور دیگر علاقوں پر جو ہے یہ تعینات ہوں گے۔ سپروائزری آفیسر سمیت سیکٹر انچارجز تمام پٹرولنگ کے سپرویژن کریں گے۔ نقص کا باعث بننے والے عناصر کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ ایس پی ڈولفن شہید راجہ کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے مجاہد، بہت شکریہ آپ کا۔ عام انتخابات کے لیے امیدواروں کی اسکروٹنی کا مرحلہ ختم ہو گیا ہے۔ لاہور کے حلقہ این اے 122 سے بانی پی ٹی آئی کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے ہیں، جبکہ نواز شریف، شہباز شریف، بلاول بھٹو، مریم نواز الیکشن لڑنے کے لیے اہل قرار۔ مسترد کاغذات کے خلاف 3 جنوری تک ٹریبیونل میں اپیل دائر کی جا سکے گی۔ مزید بتائیں گے زین علی۔ بتائیے زین۔
जी बिल्कुल, आम इंतखाबात में उम्मीदवारों की जानिब से कागजाती नामजदगी जमा करवाने के बाद अब स्क्रूटनी का मरहला, जांच पड़ताल का मरहला भी जो है वो ख़त्म हो चुका है, जिसके बाद मुस्तरद और मंजूर होने वाले कागजात के ख़िलाफ़ इलेक्शन ट्रिब्यूनल में 3 जनवरी तक उम्मीदवारों की जानिब से जो है वो अपील दायर की जा सकेगी और इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जानिब से 10 जनवरी तक इन तमाम अपीलों पर समाअत करके फ़ैसले करने होंगे। जबकि 11 जनवरी को भी एक हतमी फहरिस्त इलेक्शन ट्रिब्यूनल की रोशनी के फ़ैसलों की रोशनी में जो है शाया की जाएगी, जिसके बाद 12 जनवरी तक जो है वो तमाम उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी जो है वो वापस ले सकते हैं, जिसके बाद हतमी फहरिस्त पर के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की जानिब से उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात जो है वो अलॉट किए जाएंगे। अगर बात की जाए लाहौर से किस हल्के से किस उम्मीदवार के कागजात जो हैं वो मुस्तरद हुए, तो NA 130 से कायदे मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के कागजात जो है वो मंजूर हुए हैं, जबकि NA 122 से बानी चेयरमैन PTI और खुरम लतीफ़ खोसा के कागजात जो हैं वो मुस्तरद हुए हैं। जबकि इसी तरीके से NA 130 से डॉक्टर यास्मीन राशिद, NA 129 हमाद अज़हर, जबकि NA 125 से जमील फजल भट्टी के कागजात जो हैं मुस्तरद हुए हैं। जबकि दूसरी तरफ लतीफ़ खोसा, इब्रारुल हक, अली जाज बुटर, सलमान अकम राजा के कागजात जो है वो मंजूर हुए हैं। जबकि बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरीम नवाज़ के कागजात जो है NA 119 और NA 120 से जो है वो मंजूर हुए हैं। जबकि NA 124 से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी के कागजात मंजूर हुए हैं, जबकि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अलीम खान के कागजात NA 117 से जो है वो मंजूर हुए हैं। जबकि NA 126 से मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर सैफुल मलूक खोकर के कागजात जो है वो मुस्तरद किए गए हैं। तमाम मुस्तरद कागजात के ख़िलाफ़ इलेक्शन ट्रिब्यूनल में 3 जनवरी तक जो है अपील दायर की जा सकेगी और 10 जनवरी तक इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जानिब से समाअत के बाद इन तमाम अपीलों पर जो है वो फैसले करने होंगे। जी बहुत शुक्रिया ज़ैन। आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की स्क्रूटनी का मरहला ख़त्म हो चुका है और लाहौर के हल्का NA 122 से साबिक चेयरमैन PTI के कागजात नामजदगी मुस्तरद, जबकि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, मरीम नवाज इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार पाए हैं। NA 130 से कायद नून लीग नवाज शरीफ के कागजात बगैर किसी इतराज़ के मंजूर हुए हैं। NA 122 से बानी PTI और खुरम लतीफ़ खोसा के कागजात मुस्तरद हुए हैं, तो वहीं NA 130 यास्मीन राशिद, NA 129 हमाद अज़हर, NA 125 जमील अस्कर भट्टी के कागजात मुस्तरद हुए हैं। लतीफ़ खोसा, सलमान अकरम राजा, असर सदीक, अली एजाज और अब्रार हक के कागजात नामजदगी मंजूर किए गए। ओन चौधरी के NA 124, अब्दुल अलीम खान के NA 117 से कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं। NA 126 से सैफुल मलूक होकर के अलावा दीगर के कागजात भी मंजूर कर लिए गए हैं। बानी PTI के NA 122 से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का तहरीरी फैसला जारी किया गया है। तहरीरी फैसले में लिखा गया कि इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज ने बानी PTI को सज़ा सुनाई है। अखलाकी पस्ती के जुर्म में 5 साल के लिए नाअहली की सज़ा सुनाई गई। आइन के आर्टिकल 63(1) के तहत नाअहल किया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से कि बानी PTI के NA 122 से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का तहरीरी फैसला जारी किया गया है। तहरीरी फैसले में लिखा गया है कि इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज ने बानी PTI को सज़ा सुनाई है। साबिक चेयरमैन PTI के असासों की बात की जाए तो असासों में 5 बरस के दौरान 27 करोड़ 72 लाख 55 हज़ार रुपये से ज़ायद का इजाफा हुआ है। असासों की कुल मालियत 31 करोड़ 59 लाख 50 हज़ार हो गई हैं। बानी PTI ने तोशा खाना से खरीदी गई कीमती अशिया की कीमत 1 करोड़ 18 लाख 77 हज़ार रुपये साहिन की है। मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट देखिए। साबिक चेयरमैन PTI ने आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए लाहौर के हल्का NA 122 से कागजात नामजदगी जमा करा रखे हैं। 2018 में साबिक चेयरमैन PTI के असासों की मालियत 3 करोड़ 86 लाख 94 हज़ार रुपए थी, जबकि 2023 में असासों की मालियत बढ़ाकर 31 करोड़ 59 लाख 50 हज़ार रुपए से जायद जाहिर की गई। बानी PTI ने जमान पार्क लाहौर में 7 केनाल 8 मरले का घर वरासत में जाहिर किया है। जमान पार्क के घर की तामीर पर 4 करोड़ 86 लाख रुपए से जायद का खर्चा
بتایا گیا ہے۔ کاغذات نامزدگی میں سابق چیئرمین پی ٹی آئی نے بنی گالہ میں 300 کنال اراضی تحفے میں وصول ظاہر کی اور اس گھر کی تزئین و آرائش اور ریگولرائزیشن کی مد میں 39 لاکھ روپے سے زائد کا خرچ بتایا ہے۔ اسلام آباد کے علاقے مہرہ نور میں بھی 50 لاکھ روپے سے زائد مالیت کی 6 کنال 16 مرلے اراضی ظاہر کی گئی، جبکہ اسلام آباد کے شاپنگ پلازے میں 12 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی دکان بھی بتائی ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے 3 کروڑ 40 لاکھ روپے سے زائد مالیت کا 2 کمروں کا فلیٹ بھی اسلام آباد کے پلازے میں ظاہر کیا ہے۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی نے بھکر میں وراثت میں ملی 188 کنال اراضی بھی کاغذات میں ظاہر کی، جبکہ 3 کروڑ 15 لاکھ روپے سے زائد کیش دستی اور اسلام آباد کے مختلف بینک اکاؤنٹس میں 6 کروڑ روپے سے زائد کی رقم موجود ہے۔ 2 لاکھ روپے کی 4 بکریاں اور توشہ خانہ سے خریدی گئی قیمتی اشیاء کی قیمت 1 کروڑ 18 لاکھ 77 ہزار سے زائد بتائی گئی ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے اہلیہ بشرا بی بی کے نام پاک پتن اور دیپال پور میں 698 کنال اراضی ظاہر کی۔ بشرا بی بی کے نام بنی گالہ میں 3 کنال کا گھر بھی کاغذات نامزدگی میں بتایا گیا ہے۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی نے ایف بی آر کو 2021 میں 14 کروڑ 10 لاکھ روپے سے زائد اثاثے ظاہر کیے۔ ایک سال کے دوران 2022 میں اثاثوں کی مالیت بڑھ کر 32 کروڑ روپے سے زائد ہو گئی۔ ایف بی آر سرٹیفکیٹ کے مطابق 2023 میں اثاثوں کی کل مالیت 31 کروڑ 59 لاکھ روپے ظاہر کی گئی ہے۔ الحمدللہ مسلم لیگ نون نے ایک اور جمہوری اور انتخابی سنگ میل عبور کر لیا ہے۔ 2 دسمبر سے شروع ہونے والے انٹرویوز کا سلسلہ آج مکمل ہو گیا ہے۔ پارلیمانی بورڈ کے اجلاس میں 2300 امیدواروں کے انٹرویوز ہوئے۔ مریم اورنگزیب کا ٹویٹ مزید کہا کہ پارلیمانی بورڈ جلد ہی اپنی حتمی فیصلوں کا باضابطہ اعلان کرے گا۔ مریم اورنگزیب کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا ہے اور اپنے ٹویٹ میں ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پارلیمانی بورڈ جلد ہی اپنے حتمی فیصلوں کا باضابطہ اعلان کرے گا۔ 2 دسمبر سے شروع ہونے والے انٹرویوز کا سلسلہ آج مکمل ہو گیا ہے۔ براہ راست سے چلتے ہیں آپ کو مسلم ٹاؤن میں، جہاں نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کنونشن سے خطاب کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ نے انہیں صبر دیا ہے اور اپنی اولاد اور بچوں کی تربیت کی ہے اور اپنے خاندان کو جوڑے رکھا ہے۔ ان کی تربیت میں اس خاتون کا، ان کی ماں کا ایک بڑا کردار ہے، اور میں اس بات پر بھی اطمینان کا اظہار کرتا ہوں کہ احمد سلمان بلوچ ایک کمٹمنٹ والی شخصیت ہے اور اللہ نے اسے لوگوں کی خدمت کا جذبہ دیا ہے، اور میں دیکھتا ہوں دن رات وہ اور ان کے ساتھ اس پی پی کی پوری ٹیم لوگوں کی خدمت کے لیے متحرک رہتے ہیں۔ گیس کا، بجلی کا، مہنگائی کا، لاقانونیت کا اور سٹریٹ کرائم کا اور لوگوں کے ساتھ ناانصافی کا معاملہ ہو، یہ پوری ٹیم متحرک رہتی ہے۔ مجھے خوشی ہے پنجاب یونیورسٹی سے ایک بڑی تعداد میں ہمارے احباب، ہمارے موسن موجود ہیں۔ کچی آبادیوں سے ہمارے ساتھ محبت اور عقیدت رکھنے والے احباب اور دوست موجود ہیں۔ اس علاقے سے ہم نے اقلیتوں کے ساتھ، مسیح برادری کے ساتھ ہمیشہ محبت کا تعلق قائم رکھا ہے، اور آج ایک بڑی تعداد میں یہاں موجود ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ احمد سلمان نے اپنی محنت سے اس بات کو ثابت کیا ہے، اور آج انتخاب کے آغاز پر اس حلقے میں یہ شاندار ورکرز کنونشن
माओ बहनों बेटियों का एक बड़ी तादाद में शिरकत, हल्का खवातीन, जमात इस्लामी की क़यादत और कारकुनान की शिरकत, जेआई यूथ के नौजवानों की शिरकत। गिरा फरोश बेलगाम हैं, सब्जियों और फलों के मनमाने दाम, लहसुन 600, अदरक 500, टमाटर 140, प्याज 200 रुपये किलो में सरकारी लिस्ट पर अवेसा है, लेकिन 220 रुपये में बेचा जा रहा है। चिकन की बात की जाए तो चिकन मज़ीद 10 रुपये महंगा और फी किलो कीमत 509 रुपये हो गई है। फार्मी अंडे भी 2 रुपये दर्जन महंगे, कीमत 372 रुपये हो गई है। तफसीलात जानते हैं राहिल अली से। जी राहिल। शहर लाहौर में सब्जियों की बढ़ती कीमतों पर काबू नहीं पाया जा सका। हुकूमत की जानिब से दावे भी किए जाते हैं और मार्केट कमेटी की जानिब से रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो रेट लिस्ट भी जो है वो अवेज़ा की जाती है, मगर सरकारी नरखों पे कहीं पर जो है वो सब्जियां दस्तयाब नहीं हैं। शहर लाहौर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर टमाटर जो हैं वो इस वक्त 100 रुपये किलो जो है वो फ़रोख्त किए जा रहे हैं। मटर जो है वो 180 रुपये से लेकर 200 रुपये किलो हैं। गाजरें 50 रुपये हैं। शलजम जो है वो 60 रुपये से लेकर 80 रुपये किलो फ़रोख्त किए जा रहे हैं। अगर आलू की बात की जाए तो आलू जो है वो अच्छे जो है वो 80 रुपये किलो जो है वो फ़रोख्त किए जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। सर ये बताएं कि सब्जियों की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? आम आदमी, हमारी मोस्टली जो लोग हैं वो गरीब, हमारा तबका जो है ना वो मोस्टली गरीब तबका है, लेबर तबका है। सब्ज़ी भी महंगी है, ग्रॉसरी भी महंगी है, मुर्गी भी महंगी है। इस हवाले से जो है ना स्पेशली गवर्नमेंट को जो है ना वो काम करना चाहिए और लोगों को मैक्सिमम रिलीफ देना चाहिए। देखिए इसमें ना हमारे जो लेबर तबका है, अब ये रेलवे का एरिया, इसमें मोस्टली लेबर तबका है, तो लेबर तबके को, गरीब तबके को स्पेशली जो है ना वो रिलीफ देना चाहिए। उनकी बात से उनका कहना ये है कि रिलीफ मिलना चाहिए। सब्जियों की कीमतें जो हैं वो मुसलसल बढ़ रही हैं और दूसरी जानिब अंडे जो हैं वो 372 रुपये फ़ी दर्जन रुपये जो है वो पहुंच चुके हैं और कहीं पर 380 रुपये फ़ी दर्जन भी जो है वो फ़रोख्त किए जा रहे हैं। और इसी तरह मुर्गी के गोश्त में जो है वो 10 रुपये किलो जो है वो इजाफा हो चुका है। 509 रुपये के हिसाब से जो है वो फ़ी किलो मुर्गी जो है वो फ़रोख्त की जा रही है। तो सब्जियाँ हों, मुर्गी हों, अंडे हों, तमाम चीज़ें जो हैं वो आम आदमी के जो है क़ुव्वत ख़रीद से जो है वो बाहर होती जा रही हैं। ये कहना है शहरियों का कि हुकूमत को चाहिए कि इस पर कंट्रोल करे ताकि आम आदमी को जो है वो रिलीफ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राहील। सर्द मौसम में गर्मा गर्म नाश्ता, लाहौरिये साल के आखिरी दिन को यादगार बनाने के लिए फूड स्ट्रीट पर पहुंच गए हैं। ठंडे ठंडे मौसम में बोंग पाए गर्मा गर्म नान चने और हलवा पूरी की दुकानों पर रश है। मज़ीद बताएंगे सामिया। सर बताइए सामिया। जी बिल्कुल, ख्वाबों के शौकीन लाहौरिये गर्मा गर्म नाश्तों पर जो है वो हाथ साफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर यही देखा जा रहा है कि साल का आखिरी दिन है और खूब गहमा गहमी जो है वो लगी हुई है। मैं इस वक्त अनारकली फूड स्ट्रीट पर मौजूद हूँ और यहाँ पर यही देखा जा रहा है कि शहरी जो है वो अपनी फैमिलीज और दोस्तों के हमरा आ रहे हैं और नान चने, बोंग पाए, हलवा पूड़ी पे जो है वो हाथ साफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ना सिर्फ शहरी जो है वो नाश्ता कर रहे हैं बल्कि पैक करवा के घर वालों के लिए भी लेकर जा रहे हैं ताकि वो भी साल के आखिरी दिन को खूब इंजॉय कर सके। मेरे साथ यहाँ पर एक फैमिली मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा क्या खा रहे हैं और किस तरीके से जो है वो अपने दिन को एंजॉय कर रहे हैं? जी अभी हम जो है वो नान चने खा रहे हैं, साथ मूंग पाए खा रहे हैं और साल का आखिरी दिन है तो इसलिए इसे फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए निकले हैं। ये छोटे बच्चे जो हैं वो भी बड़े एक्साइटेड हैं, तो इस तरह हम इसकी सेलिब्रेशन के लिए निकले हैं आज। हाँ जी बिल्कुल, आप बताएं नए साल में किस चीज़ के अज़म का इरादा रखते हैं और क्या खा रहे हैं आज? जी माशाल्लाह से हम हलवा पूरी और यहाँ के बड़े मशहूर हैं चने और पाए वो खा रहे हैं। बेसिकली हम जंग से बिलोंग करते हैं और हम साल का ये आखिरी दिन जो है लाहौरियों के साथ मनाने आए हैं क्योंकि लाहौरिये बहुत जिंदा दिल होते हैं, इसलिए हम यहाँ पे जो है सेलिब्रेट करने आए हैं माशाल्लाह से। जैसे कि आपने सुना परदेसी जो हैं वो भी लाहौर के जो नाश्ते के जो हैं वो शौकीन निकले हैं। यहाँ पर जो है वो खूब नाश्तों पर जो है वो हाथ साफ किए जा रहे हैं। जी शुक्रिया सामिया। और खेल के मैदान से अगर बात की जाए तो धर्मपुरा मियां मीर क्रिकेट ग्राउंड में मंचलों का रश बरकरार है। नौजवान छुट्टी के रोज क्रिकेट खेलने में मगन है। नौजवानों के साथ साथ बच्चों की बड़ी तादाद क्रिकेट खेलने के लिए उमड़ आई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद उसामा से। जी उसामा बताइएगा। इस वक्त मैं धर्मपुरा मियां मीर क्रिकेट ग्राउंड में मौजूद हूं। यहाँ पे मंचलों का रश नजर आ रहा है क्योंकि आज इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है।
पूरा हफ्ता मसरूफ रहने के बाद आज का दिन नौजवानों के लिए होता है। नौजवान क्रिकेट से लुत्फ अंदोज होते हैं। यहाँ न सिर्फ नौजवान मौजूद हैं बल्कि बच्चों की भी बड़ी तादाद हमें यहाँ पे नजर आ रही है जो अपनी छुट्टी का मजा दुबाला करने के लिए क्रिकेट से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। इस वक्त भी कुछ शौकीन क्रिकेट, कुछ नौजवान मेरे साथ मौजूद हैं। इस हवाले से उनसे भी बात करते हैं। आप बताइएगा, आज इतवार का दिन है तो इस दिन को कैसे मना रहे हैं? छुट्टी का दिन है, इतवार का दिन है और हमारी जो न्यू जनरेशन है वो स्पोर्ट्स की बहुत शौकीन है। ये ग्राउंड का सारा हाल देख रहे हैं, ये जितना भी काम हुआ है ये हमने मिलके जो करवाया, बाकी सारा ये देखें। एक ही दिन छुट्टी का होता है जो हम इंजॉय करते हैं और ये सारे दोस्त आते हैं। कुछ और शौकीन भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा, इतवार का दिन है तो इस दिन को कैसे मना रहे हैं? छुट्टी का दिन है, सारा हफ्ता मसरूफ रहते हैं। जी, पूरा हफ्ता मसरूफ रह के एक इतवार का दिन होता है कि हमें एंजॉय करने का मौका मिलता है। फिर हम ग्राउंड का रुख करते हैं, फिर इधर आके पूरा दिन एंजॉय करते हैं। शौकीन क्रिकेट की जानिब से खुशी का इजहार किया जा रहा है क्योंकि इतवार का दिन इस मसरूफियत के दौर में किसी नेमत से कम नहीं। सारे स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज बंद होती हैं, दफातर भी बंद होते हैं, तो सारा दिन यहाँ ग्राउंड में रौनक नजर आएगी और इसी तरह शाम तक ये मेला सजा रहेगा। और खेलों की सरगर्मियों से वाबस्ता रहना न सिर्फ सेहत के लिए अच्छा है बल्कि दीगर नशा आवर चीज़ों से भी बचा जा सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप। तो आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब ने वज़ाइफ और इमदादी रकूम के लिए बैतुल माल ऐप का इफ्तिताह कर दिया है। मोहसिन नकवी का कहना है कि मुस्तहिकीन और ज़रूरतमंदों को बैतुल माल पोर्टल और ऐप के जरिए इमदाद आसानी से मैसर होगी। 32 साल बाद महकमा बैतुल माल जिद्दत की राह पर गामजन। वज़ाइफ और इमदादी रकूम के लिए बैतुल माल के वेब पोर्टल और ऐप का आगाज कर दिया गया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी का कहना है कि मुस्तहिकीन और ज़रूरतमंदों को इमदाद अब आसानी से मुयस्सर होगी। बैतुल माल पोर्टल और ऐप के जरिए मुस्तहिकीन को अदायगी में शफाफियत होगी। पोर्टल और ऐप के क़याम का मकसद मुस्तनद डेटाबेस और पेपरलेस वर्किंग है। इमदाद और स्कॉलरशिप के लिए अब बैतुल माल के पोर्टल या ऐप के जरिए दरखास्त दी जा सकेगी। तिब्बी इलाज और मैरिज ग्रांट के लिए भी इन्हीं के जरिए अप्लाई किया जा सकेगा। इस मौके पर सूबाई वजीर सेहत व बैतुल माल डॉक्टर जावेद अकरम का वज़ीर आला को ब्रीफिंग में कहना था कि अस्पतालों में मरीजों को इलाज के लिए बैतुल माल से इमदाद का निज़ाम भी ऑनलाइन किया जाएगा। दरखास्त दहिंदा के अप्लाई करने पर मुतालिका जिला से तस्दीक के बाद कमेटी कार्रवाई करेगी। दस्तियाब फंड्स की तकसीम के मुताबिक दरखास्त दहिंदा को UBL ओमनी के जरिए अदायगी की जाएगी। साल 2023 मेगा प्रोजेक्ट्स का साल रहा है। निगरान पंजाब हुकूमत ने कई मेगा प्रोजेक्ट शुरू करके मुकम्मल कर लिए, लेकिन माजी में शुरू होने वाले कई मंसूबे इस साल भी अधूरे रहे। साल के अख्तिताम पर निगरान पंजाब हुकूमत ने मजीद मंसूबे शुरू करने का ऐलान भी किया। रिपोर्ट करेंगे ज़ैनुल आबिदीन। साल 2023 में शहर लाहौर तरक्याती कामों का गहवारा रहा। जनवरी में ही पंजाब में निगरान हुकूमत बरसरे इख्तिदार आ गई और ट्रैफिक रवानी को यकीनी बनाने के लिए कई मंसूबों पर काम का आगाज किया। जनवरी से दिसंबर तक कई मेगा प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हुए। 2 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन चुके, बाकी अभी अधूरे हैं। ताखीर का शिकार लाहौर ब्रिज मंसूबे को 31 मई को मुकम्मल किया गया। समनाबाद अंडरपास को शुरू करके रवां साल ही में खत्म किया गया। शाहदरा के मकाम पर फ्लाई ओवर्स की 7.5 माह में तकमील हुई। नवाज शरीफ इंटरचेंज के मकाम पर बेदियां अंडरपास को भी रवां साल मुकम्मल किया गया। मौलाना मोहम्मद अली जौहर अल मारूफ अकबर चौक फ्लाईओवर को भी कलील मुद्दत में निपटाया गया। मौलाना शौकत अली रोड को मुकम्मल सिग्नल फ्री बनाया गया। रवां साल में लाहौर के बासियों को कैवलरी अंडरपास का तोहफा दिया गया। कैनाल रोड नजरिया पाकिस्तान रोड से अमीर चौक तक को सिग्नल फ्री बनाया गया। रावी ब्रिज तोसी मंसूबा और कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर बंद रोड मंसूबे पर काम अभी जारी है। तकमील के करीब कॉलेज रोड की रीमॉडलिंग का काम रवां साल मुकम्मल न हो सका। कैनाल रोड पर अंडरपासेस की ब्यूटिफिकेशन की तारीख 30 दिसंबर थी। आखिरी मराहिल में मौजूद ये काम भी चंद रोज में मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस्लामिया ग्राउंड, संत नगर और चाइना स्कीम मुकम्मल होने के बावजूद रवां साल खोले ना जा सके। 5 साल बाद LDA असफाल्ट प्लांट को फंक्शनल करके टीपा को दे दिया गया। साल 2023 में निगरान पंजाब हुकूमत ने गड़ी शाहू फ्लाईओवर, क्रीम ब्लॉक अंडरपास और वाई ब्लॉक जंक्शन गार्डर टाउन का मंसूबा भी पेश कर दिया है। छोटे सरकारी मुलाजमिन के लिए बड़ी खबर सामने आई है कि रिहाइश के लिए मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स बनेंगे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने शबुर्जी स्टाफ कॉलोनी में मल्टी स्टोरीज टावर का संग बुनियाद रख दिया। मोहम्मद यासीन की रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने छोटे सरकारी मुलाजमीन के लिए चौबुर्जी स्टाफ कॉलोनी में मल्टी स्टोरी फॉर अपार्टमेंट्स मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। कॉलोनी के लिए नया सेविस सिस्टम और सिक्योरिटी निजाम लाने का भी ऐलान किया। मंसूबे का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए मोहसिन नकवी ने बताया कि 5 मंजिला टावर में ग्रेड 11 से ग्रेड 14 तक मुलाजमीन के लिए रिहाइश गाहें बनाई जाएंगी। टावर के लिए ट्यूबवेल चैम्बर और जनरेटर रूम बनाया जाएगा। खसूसी तौर पर फायर फाइटिंग सिस्टम और अलार्म लगाए जाएंगे। हर टावर में 30 कारों और 40 मोटरसाइकिलों की
पार्किंग भी होगी। टावर के हर फ्लोर पर 6 अपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे। मेरी कोशिश होगी विद इन दिस मंथ ये चारों के चारों टावर मेरे जहन में तो 4 टावर थे और 6 फ्लोर थे। मैं कल ही इसके ऊपर मीटिंग करके ये इंशाल्लाह इंश्योर करेंगे कि ये 6 फ्लोर हों और ये कम से कम 4 टावर तो अभी शुरू हों। इन टावर्स में फायर अलार्म सिस्टम, लिफ्ट्स, जनरेटर्स, वो तमाम बेसिक चीज़ें जो एक अच्छे अपार्टमेंट में होनी चाहिए वो तमाम की तमाम यहाँ पे अवेलेबल होंगी इंशाल्लाह ताला। सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर, चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और CCPO समेत मुतल्लिका हुकाम भी इस मौका पर मौजूद थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद यासीन, लाहौर न्यूज़। फ़ज़ाई आलूदगी और खुश्क सर्दी से शहरी मुतासिर हैं। हस्पतालों में खांसी, सांस में दुश्वारी के मरीजों में इजाफा हो गया है। बच्चों में नमूनिया, चेस्ट इन्फेक्शन और खुश्क खांसी की बीमारियां आम होने लगी हैं। एक हफ्ते के दौरान स्मोक से 22,000 से ज़ायद मरीज रिपोर्ट हुए हैं। इस पर बात करेंगे मोहम्मद बिलाल से। बताइए बिलाल। जी बिल्कुल, शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स और फ़ज़ाई आलूदगी की शरह में ख़तरनाक हद तक इजाफा जारी है, जबकि इसके साथ साथ खुश्क सर्दी पड़ने की वजह से जो शहरी हैं बड़ी तादाद में बीमार हो रहे हैं। गुज़श्ता 7 रोज़ में शहर के जो 5 बड़े सरकारी अस्पताल यहाँ पर तकरीबन 12,000 से ज़ायद जो मरीज़ हैं ये रिपोर्ट हुए हैं, जो कि खुश्क खांसी, नज़र जुकाम, बुखार, जबकि बच्चों में चेस्ट इन्फेक्शन, नमूनिया की शिकायत हैं। जबकि सबसे ज़्यादा जो मरीज़ हैं वो तकरीबन मियो हस्पताल और जिनाह हस्पताल में रिपोर्ट हुए हैं, जो कि 5,000 से ज़ायद। इसी तरह तकरीबन गंगाराम हस्पताल में भी 4,000 से ज़ायद जो मरीज़ हैं ये रिपोर्ट हुए हैं। इसके साथ साथ लाहौर जनरल हस्पताल और सर्विस हस्पताल में भी हज़ारों जो मरीज़ हैं ये रोज़ाना की बुनियाद पर सामने आ रहे हैं। इस हवाले से जो महकमा सेहत है इनकी जानिब से हाई अलर्ट भी जारी किया गया है कि खुश्क सर्दी पड़ने की वजह से और एहतियाती तदाबीर इख्तियार ना करने की वजह से जो बुज़ुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, ये सबसे ज़्यादा जो मुतासिर है ये हो रहे हैं। उनको चाहिए कि एहतियाती तदाबीर को अपनाएं और घरों से बाहर निकलते वक्त जो मुनासिब जो कपड़े हैं उनका इस्तेमाल करें। जबकि जो फ़ज़ाई आलूदगी है इससे बचने के लिए जो मास्क है इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। इस हवाले से डायरेक्टर CDC डॉक्टर यदुल्ला की जानिब से कहा जा रहा है कि ख़ासकर जो बीमार अफराद है जो कि फेफड़ों में और दमे की मर्ज में मुब्तला है, उनको चाहिए कि बिला ज़रूरत अपने घरों से बाहर ना निकले और इसके साथ साथ अपने इम्यूनिटी को बेहतर करने के लिए जो ड्राई फ्रूट्स हैं, जो कहवा है, इसका इस्तेमाल करें। और ख़ासकर जो नौजवान हैं वो जब घरों से बाहर जाएँ, बाहर से जब घर को वापस आएँ तो अपने मुंह को बार बार धोएं और जो गर्म जो मशरूबात हैं उनका इस्तेमाल करें ताकि स्मोक के इफ़ेक्ट से भी बचा जा सके। जबकि जो बच्चे हैं नौमौलूद जो कि चेस्ट इन्फेक्शन में मुब्तला है उनको भी चाहिए कि जो मुस्तनद डॉक्टर्स हैं उनको चेकअप कराएं ताकि नमूनिया जैसे ख़तरनाक बीमारी से बच सकें। शुक्रिया बिलाल।